Hello guys, I am Arvind and this is the continuation video of function in C programming and this is part 2. So let's get started with the next topic and that is categories of function. So there are four categories of function in C programming. So first one is function with no arguments and no return value. So there will be no arguments and no return value. And second one is function with no arguments but with a return value, and third one is function with arguments but no return value, and the last one is function with arguments and with a return value. So let's go ahead and we'll discuss one by one. So the first category is function with no arguments and no return value. So the return type of the function will be void and there will be no parameters in the function. So I have taken an example for you. So this is void sum and then semicolon. So the return type of this function is void. There are no parameters in this function. So this is the first category. So let's go ahead and we'll discuss second one. And this is the function with no arguments but with a return value. So these functions are of the form. So here we need to mention its return type and there will be no parameters in this category. So I have taken two examples here. So this is int sum. So the return type of this sum function is integer, and in the next statement the return type of the sum function is float. So this sum function will return integer value and this sum function will return float value. Okay, I hope it is clear to you. Now moving on to next topic, and that is function with arguments but no return value. So in these type of functions there will be no return type. So the return type will be void and there will be arguments. So I have taken an example for you, the void sum a and b. So we have passed two parameters here and the return type of this sum function is void. So I hope it is clear to you. So now moving on to the next category, and that is function with arguments and with return value. So in these functions we need to mention its return type and the arguments. So I have taken some examples to you. So this is the first example and this is the second example. So the return type of this sum function is integer and we have taken two parameters a and b, and in the next example the return type of sum function is float and there are two parameters a and b. So I hope it is clear to you. So guys, we have done a program in the previous video of draw line by using loop. So now I will do this program with the help of function. So let's open up the Turbo C++ compiler and I will show you the working of function over there. So guys, in the previous video we have done a draw line program using for loop, but now we are doing that program using function. सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन कहाँ पर प्लेस्ड होंगे एक प्रोग्राम में. तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो डिक्लेरेशन है वो आउटसाइड मेन होगा यानी ग्लोबल होगा, और उसकी पोजीशन भी आपको बताया था कि हेडर फाइल्स के बाद में और मेन फंक्शन से पहले. ठीक है, तो सपोज़ मेरे फंक्शन का नेम ड्रॉ लाइन है तो वो कहाँ पर प्लेस्ड है, वो मेन से ऊपर है और हेडर फाइल से नीचे है. ठीक है, और फंक्शन कॉलिंग को मैंने बताया था आपको कि मेन में होगा. फंक्शन कॉलिंग विल बी हेल्ड इन मेन. सो आप देख रहे हैं कि इस ड्रॉ लाइन फंक्शन को हमने 4 टाइम्स कॉल किया है. दिस सेकेंड टाइम, दिस इज थर्ड टाइम एंड दिस इज फोर्थ टाइम, और वो कहाँ पर है, मेन के अंदर है. ठीक है, सो द फंक्शन कॉलिंग विल बी इन मेन, और जो फंक्शन डेफिनेशन है वो भी आउटसाइड मेन होगा यानी ग्लोबल होगा, और वो उसका जो प्रॉपर लोकेशन है अकॉर्डिंग टू स्टाइल ऑफ सी प्रोग्रामिंग वो है आफ्टर मेन फंक्शन. ठीक है, सो दिस इज़ द फंक्शन डेफिनेशन. ओके, सो चलिए हम इस प्रोग्राम की वर्किंग आपको एक्सप्लेन करते हैं. तो सबसे पहले मैं फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, उस फंक्शन का नेम है ड्रॉ लाइन, और एज यू नो दैट द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज void. So it means this draw line function will not return any value and there is no parameter inside this function. ठीक है, now this is the main function, और हमने draw line को 4 टाइम्स यूज़ किया है
क्योंकि हमें 4 लाइंस ड्रॉ करनी थी। अगर आपको याद हो पिछला प्रोग्राम, तो हमने पहले लाइन ड्रॉ की थी, फिर हेलो, फिर लाइन थी, फिर अरविंद, फिर लाइन, फिर खारवाल, फिर लाइन। तो उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर इस ड्रॉ लाइन को आप रिप्लेस कर दें 4 और दिस स्टेटमेंट से, तो पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमने पिछले किया था। ठीक है, तो हमने केवल इन दोनों स्टेटमेंट्स को, फॉर और प्रिंट स्टेटमेंट को हमने रिप्लेस कर दिया है इस ड्रॉ लाइन फंक्शन को। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसका बेनिफिट क्या है, कि हम लोगों को कोड रिपीटिशन करना नहीं पड़ रहा है, यानी कि हम लोग केवल ड्रॉ लाइन फंक्शन कॉल कर ले रहे हैं जब हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराना था। तो चलिए हम लोग इसकी वर्किंग देखते हैं कि कैसे वर्क करेगा ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो सबसे पहले जो कंट्रोल है वो मेन के पास जाएगा। मेन में आने के बाद वो फिर CLR फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और इसकी वर्किंग आप जानते हैं, इट एक्चुअली क्लियर्स द आउटपुट कंसोल। ठीक है, ये जो आपका आउटपुट कंसोल है उसको क्लियर कर देगा। देन इट विल कॉल दिस फंक्शन ड्रॉ लाइन। ठीक है, और जैसे ही इस ड्रॉ लाइन फंक्शन को कॉल करेगा, ये सबसे पहले सिग्नेचर मैच करेगा फंक्शन डिक्लेरेशन से। सिग्नेचर मैचिंग मीन्स कि इट इज़ बेसिकली चेकिंग द रिटर्न टाइप एंड द पैरामीटर्स। ठीक है, और फंक्शन कॉलिंग का सिंटेक्स मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो क्या था, केवल फंक्शन नेम और पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स यहाँ पर हमारे इस फंक्शन में है नहीं, तो सिंपल विल कॉल दिस फंक्शन एज इट इज़। सो इट इज़ फंक्शन कॉलिंग। जैसे ही ये ड्रॉ लाइन फंक्शन कॉल होगा तो सीधे कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगा फंक्शन डेफिनेशन पर, एंड दिस इज़ द फंक्शन डेफिनेशन ऑफ दिस ड्रॉ लाइन फंक्शन। ठीक है, तो बाकी के नीचे के जितने स्टेटमेंट्स हैं वो सस्पेंड हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही फंक्शन डेफिनेशन में आएगा, और आप लोग जानते हैं इस फंक्शन डेफिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, एक रो प्रिंट कर रहे हैं जिसमें 5 स्टार्स होंगे। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 5 स्टार्स प्रिंट करेगा। जैसे ये अपनी एग्जीक्यूशन या वर्किंग फिनिश कर लेगा, ड्रॉ लाइन फंक्शन वापस कहाँ पर आने वाला है, मेन फंक्शन में। और मेन फंक्शन में फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट इसको क्या मिलने वाला है, प्रिंट एफ हेलो। और हेलो में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले \n है, यानी कि लाइन प्रिंट करने के बाद वो न्यू लाइन में आएगा, देन हेलो प्रिंट करेगा, और हेलो प्रिंट करने के बाद फिर \n है, यानी कि फिर वो न्यू लाइन में चले जाने वाला है। यानी कि नेक्स्ट लाइन जो होगी वो फिर वो न्यू लाइन में प्रिंट होगी। एंड अगेन वी आर कॉलिंग दिस ड्रॉ लाइन फंक्शन, सो इट विल रिपीट ऑल द प्रोसेस अगेन। सो फिर सिग्नेचर मैचिंग होगा, फिर लाइन प्रिंट होगा, देन come to this statement and it will print Arvind in new line, and control will go to the next line and it will print again line, then Kharwal, then draw line. So now if I run this program, output would be like this. So these are the lines that we draw from the draw line function, and these are the 3 statements, hello, Arvind and Kharwal. Okay, so I hope it is clear to you, एंड आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को यूज़ करना है फंक्शन, किस तरीके से हमें फंक्शन डिक्लेयर करना है, किस तरीके से हमें फंक्शन कॉल करना है, और किस तरीके से हमें फंक्शन को डिफाइन करना है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, and thank you so much guys for watching this video, and just in case you liked it, do not forget to like and subscribe. I will see you then in the next video.